Praise the Lord, everyone. मैं सबों के सामने प्रेज लॉर्ड कहता हूँ। Before we meditate God's word for worship, let's look to the Lord in prayer. इबादत से पहले खुदा का कलाम का मुताला करने से पहले हम दुआ करेंगे। Our loving, living Heavenly Father, God of grace, mercy, and peace, we once again thank you and worship you for saving unworthy people like us, O Lord, who at all does not deserve any mercy from you, but thou hast shown compassion unto us. Thou hast saved us to be worshippers, O Lord. As the Father seeks true worshippers also, Lord, we have gathered here to worship you in spirit and truth, O Lord. Even as we, Lord, look to the scriptures for help, for exhortation, for encouragement, Lord, give us thy precious word unto us, so that we can bring a worthy worship unto us, unto you, dear for Lord. Help both of us, O Lord, even as we communicate your word. In Jesus' precious name we pray. Amen. Dear friends, good evening and praise the Lord once again. प्रिय दोस्तों, अजीजों, और एक बार आप सबों के सामने मैं गुड इवनिंग कहता हूँ, प्रेज लॉर्ड कहता हूँ। What a privilege it is for us to be found in God's presence. खुदा की मौजूदगी में रहना हम सबों के लिए कितना ही बड़ा इस्तेखाक है ना। Throughout the rest day, that is on the Sunday, we are privileged to be in God's presence right from the morning. हर एक इतवार के दिन जो हमारे लिए आराम का दिन है, खुदावंत का दिन है, खुदावंत की मौजूदगी में हम आते हैं। Whenever I come here to minister God's word, जब भी मैं यहाँ पे खुदा का कलाम का तकसीम करने के लिए आता हूँ, I feel it's a privilege because right from the morning, 10 o'clock, 10 to maybe 4 o'clock, I spend in my church, and then from 5 o'clock at least to 8 o'clock, I spend time here. मुझे तो बहुत खुशी मिलती है यहाँ आते हुए, क्योंकि उस दिन हर इतवार को जब भी मैं यहाँ आता हूँ, सुबह 10 बजे से लेकर शाम में 4 बजे तक मेरे चर्च में मैं रहता हूँ, और उसके बाद शाम में 5 बजे से लेकर 8 बजे तक यहाँ बिताता हूँ। खुदा की मौजूदगी में मुझे खुशी मिलती है। We experience a lot of peace and tranquility. हम सबों को खुदा की मौजूदगी में बहुत इत्मीनान और अमन और चैन महसूस करते हैं। We forget the outside world. इस दुनिया में बाहर की दुनिया में जो भी है उसे हम भूल जाते हैं। And when we come to worship, we focus on the Lord, His goodness. जब हम खुदा की इबादत करने के लिए आते हैं तो खुदा पर हमारी नजर डालते हैं, उसकी भलाई पर हम नजर डालते हैं। We have been saved to worship. हम इसलिए बचाए गए हैं, नजात याफ्ता हुए हैं कि हम इबादत करें। One commonality between heaven and earth is there is worship. आसमानी बादशाहत और जमीन, इन दोनों में एक कॉमन थिंग है, वो है इबादत। Today we'll examine a fragment of a verse in 1 Samuel chapter 15. पहले समूएल की किताब बाब नंबर 15 से हम एक जुमला, एक फ्रेज हम देखेंगे। In 1 Samuel chapter 15 and verse 31, the second part says, and Saul worshipped the Lord. पहले समूएल की किताब 15 बाब और आयत नंबर 31 में आखिरी हिस्से में लिखा हुआ है कि साऊल ने यहोवा को सिजदा किया। We have explored many practical definitions of worship. सिजदा या इबादत को लेकर हम बहुत सारे डेफिनेशंस देखते रहते हैं। From Genesis chapter 22, we have concluded that worship is sacrifice. पैदाइश की किताब बाब नंबर 22 से हम देखते हैं कि इबादत का मतलब होता है कुर्बानी। Again in Psalm 78, we have explored and found out that worship is remembering God, remembering His works. और मज़ामिर की किताब चैप्टर 78 में से हम देखते हैं कि यहोवा की इबादत करने का मतलब ये होता है कि उसे याद करना, उसके कामों को याद करना। When we come to the New Testament and find John chapter 12, और जब आप नए अहदनामा में आते हैं और यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 12 में आते हैं, one more glorious definition of worship is throwing yourself at the feet of our Lord. और एक बहुत अजीम डेफिनेशन दिया गया है, तारीफ दिया गया है इबादत के बारे में, और वो है खुदावंद यीशुआ के पैरों या कदमों के पास अपने आप को गिरा देना। Now what is the definition we get from this passage, 1 Samuel chapter 15? तो यहाँ पे पहला समूएल की किताब बाब नंबर 15 31वीं आयत से हमें क्या तारीफ मिलती है? The principle is we must value God and evaluate ourselves when we come here to worship. यहाँ पे जो प्रिंसिपल हमें मिलता है वो ये है कि हम खुदा की मौजूदगी की अहमियत समझें, और जब उसके पास आते हैं तो उस अहमियत के मुताबिक उसकी इबादत करें। How much value we accord to our Lord, हमारे खुदावंद को आप कितनी अहमियत देते हैं, and how much we evaluate ourselves when we present our worship. और जब हमारी इबादत हम पेश करते हैं तो हम कितनी अहमियत देते हुए हम पेश करते हैं। One of the glorious truths of this passage इस आयत में एक बहुत अच्छी सी बात है
है, that worship is always backed by obedience, repentance, and humility. वो बात यह है कि इबादत के पीछे हमेशा फरमाबरदारी और मन फिराव रहते हैं, And then comes worship. और उसके बाद ही इबादत पैदा होती है। Without these three things, our worship is in vain. इन तीन चीजों के अलावा हमारी इबादत जो भी है वो नाफायदे की इबादत होती है। Although the scripture says Saul worshiped the Lord, यहाँ पे लिखा हुआ है कि साऊल ने यहोवा को सिजदा किया, but if you read the entire passage, this 15th chapter, लेकिन अगर आप पहला शमूएल का पूरा 15वां बाब पूरा पढ़ेंगे all these three characteristics are missing in the life of Saul. तो यहाँ पे ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं ये साऊल की जिंदगी में हम देखते नहीं हैं। There was no obedience, साऊल की जिंदगी में फरमान बरदारी नहीं थी, there was no repentance, और मन फिराव नहीं था, and there was no humility. और अपने आप को हलीम बनाना वो खाकसारी नहीं थी। And finally, we conclude whatever the phrase Saul worshiped the Lord was but in vain. तो यहाँ पूरा पढ़ने के बाद हमें ये पता चलता है कि जो यहाँ लिखा हुआ है कि साऊल ने यहोवा को सिजदा किया, ये तो ना का बराबर हो गया है। One more characteristic we can add to Saul is he was very, very stubborn. साऊल की जिंदगी में उसके बारे में और एक सिफत या कैरेक्टरिस्टिक्स हम बोल सकते हैं, वो ये है कि वो बहुत जिद्दी था। And at the same time, God was also displaying his glorious characteristics. लेकिन उसी वक्त खुदा ने भी उसकी निस्बत अपनी अजमत और शान को वो बयान करता था। What was the two outstanding characteristics of God? हमारे खुदा के दो खास कैरेक्टरिस्टिक्स या सिफत क्या हैं? Compassion and mercy. कंपैशन मतलब रहमदिली और करम। And these two characteristics God was exhibiting to Saul through the prophet Samuel. समूएल नबी जो है उनके जरिए से खुदा ने अपने ये क्वालिटीज जो हैं साऊल की निस्बत जाहिर कर रहा था। Now, what is compassion? How do you define it? अब हम कंपैशन या उल्फत को क्या कह सकते हैं? That means one who sees our struggles. मतलब ये उसका मतलब ये है, कंपैशन का मतलब ये है कि वो जो हमारी शिद्दत या हमारे कामकाज को शदीद कामकाज को देखता है And has a desire to help us. हमारी मुशक्कत को देखते हुए हमारी मदद फरमाने का दिल रखता है। One of the most famous loud verses by me is Matthew 9:36. He had compassion on them. मत्ती की खुशखबरी चैप्टर 9 वर्स 36 में लिखा हुआ है, वो बहुत मतलब सबों को ये बहुत पसंद है, वो है कि उसने उस पर तरस खाया। He saw them as a sheep without a shepherd. खुदावंद यीशुआ ने उन लोगों को, उन दिनों के लोगों को ऐसा देखा कि वो लोग भेड़ की मानिंद हैं जिनका चरवाहा नहीं है। They were dispirited and they were distressed. वो लोग बहुत गमज़दा थे और परागंदा होते थे। We know the parable of the episode about the Good Samaritan. हमें तो अच्छा सामरी का वो तमसील पता है ना। We know the priest and the Levite passed by the man who was wounded. हमें पता है कि वहां पे देखते हैं, पढ़ते हैं कि लेवी आया था, वो चला गया था, और एक काहिन आया था, वो भी चला गया था और उस जख्मी इंसान को छोड़ के चले गए थे। But this Good Samaritan showed mercy, showed compassion. लेकिन ये अच्छा सामरी जो था उसने उस पर तरस दिखाई। Saw the struggle this man was undergoing and he had a deep desire to help him out. और उसके अंदर बहुत उसकी निस्बत तरस होने लगा और उसने उसकी मदद फरमाई। Saul was the first king of Israel, chosen and anointed. हम देखते हैं कि साऊल इस्राएल का पहला बादशाह है जिसे खुदा ने चुना और मसा किया। Initially, he started on a successful venture, शुरुआत में उसने तो बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ते गया, leading Israel through victories, इसराइलियों को फतह दिलाते गया, establishing the nation and strengthening it. और कौम को वो मजबूत बनाते गया। However, it wasn't long before he began to falter. लेकिन ज्यादा ही वक्त नहीं लगा बल्कि वो गिरने लगा। What is his fault? उसकी गलती क्या थी? He began to disobey God's command. उसकी गलती ये थी कि खुदा का हुक्म जो है उसकी नाफरमानी करने लगा। This passage of 1 Samuel 15 ये पैसेज जो है पहला समूएल बाब नंबर 15 में tells us that God commanded King Saul to destroy the Amalekites completely. ये पैसेज हमें ये बताता है कि खुदा ने कहा था कि अमाले के लोग जो हैं उन्हें कुल मिलाकर उन सबों को नेस्तो नाबूद कर दें, And total annihilation. और सबों को बिल्कुल नेस्तो नाबूद या हलाक करें।
But the scripture says लेकिन नविश्ते में लिखा हुआ है Saul held back some of the cattle. साऊल ने क्या किया था, चंद जानवरों को अपने पास रख लिया था। He spared the king. उसने उनके बादशाह को जिंदा बख्शा। What was his logic or reasoning? और उसने क्या लॉजिक पेश किया था? I wanted these animals to be offered as a sacrifice to the उसने Lord. कहा था कि मैं चाहता हूं कि इन जानवरों को खुदा के वास्ते ज़बीहे के तरीके से मैं पेश करूं। Who are these Amalekites? ये अमालेकी लोग कौन हैं? They were descendants of Esau, ये लोग एसाव जो था उसके बच्चे हैं। twin brother of Jacob. एसाव कौन था? याकूब का भाई था। Now Saul's obedience was only partial. यहाँ देखते हैं कि साऊल की फरमान बरदारी जो है वो सिर्फ और सिर्फ पार्शियल है, मतलब थोड़ा ही था। In God's eyes, partial obedience is no obedience at all. खुदा की नजरों निगाहों में पार्शियल ओबीडियंस जो होता है वो बिल्कुल ना का बराबर होता है। When prophet Samuel encounters Saul, जब समूएल नबी जो है वो जाकर साऊल से मिलते हैं, he questions the king and says, वो साऊल बादशाह से सवाल पूछकर कहते हैं, does the Lord delight in offerings and sacrifices? क्या खुदावंद ज़बीहों या कुर्बानियों में इतनी दिलचस्पी रखता है As in obeying the voice of the Lord? जितना वो उसका हुक्म मानने से वो मिलता है? Behold, to obey is better than sacrifice. उसने कहा, देख फरमान बरदारी कुर्बानी से बेहतर है। Now, having said the story and said the introduction, देखें यहाँ पे ये दास्तान जो है इसका बयान मुख्तसरन करने के बाद let's examine the heart of Saul अब हम साऊल का दिल जो है उसका मुआवजा करेंगे and make some conclusions about the kind of life God desires and God demands. और ये जानेंगे कि खुदा किस तरह की जिंदगी चाहता है और किस तरह का जिंदगी तलब करता है, हम देखेंगे। Now we'll read verse 10, 15, 10. अब 15 का पहला समूएल 15 की 10 हम पढ़ेंगे। Then the word of the Lord came to Samuel, verse 11, I regret that I have made Saul king, for he has turned back from following me and has not carried out my commands. तब यहोवा का कलाम समूएल को पहुंचा, मुझे अफसोस है कि मैंने साऊल को बादशाह होने के लिए मुकर्रर किया, क्योंकि वो मेरी पैरवी से फिर गया है और उसने मेरे हुक्म नहीं माने। Why did the Holy Spirit write this verse? खुदा का पाक रूह ये आयत क्यों लिखवाया? Because Saul made wrong choices. क्योंकि यहाँ पे साऊल ने गलत चीजों को चुन लिया। Saul disobeyed the Lord. साऊल ने यहोवा की नाफरमानी की। When these two things happen in our life, जब ये दोनों हमारी जिंदगी में होने लगती it हैं, snaps the relationship with God. हमारे खुदा से हमारा रिश्ता जो है उसे काट डालती हैं। Any worship that with this strained relationship is futile. खुदा से रिश्ता तोड़ने के बाद जितनी भी इबादत हम करें वो इबादत बेकार होती है। The moment Saul disobeyed, जिस वक्त साऊल ने नाफरमानी दिखाई, the relationship with Saul and God came to a standstill. उसी वक्त खुदा और साऊल के बीच में जो रिश्ता था वो टूट गया था। And because in verse 11, और यहाँ पे 11वीं आयत में लिखा हुआ है, these are the sad words of our Lord. यहाँ पे हमारे खुदा बहुत दिलसोज होकर ये बातें कहता है। God says, I regret. खुदा कहता है मुझे अफसोस है, I regret मुझे अफसोस है that I have made Saul the king. कि मैंने साऊल को बादशाह होने के लिए चुना। But in spite of it, लेकिन फिर भी God is trying to reach out to Saul through the prophet. साऊल को खुदा ने छोड़ा नहीं बल्कि नबी के जरिए उसको उस तक पहुंच रहा है And heal this broken relationship. और ये जो रिश्ता टूट गया है उसे फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। My dear friends, the only thing that can break our relationship with God and us is sin. मेरे प्यारे भाई बहनों, जो हम और हमारे खुदा के बीच में रिश्ता है उसे जो तोड़ता है वो है गुनाह। Your iniquities have separated you and from your God. आपके गुनाह जो हैं आपको और आपके खुदा के बीच में आकर आप दोनों को जुदा कर दिए। They have come in between God and us. आपके और हमारे दरमियान हमारे गुनाह आ गए। And because of sin, we cannot behold His face. हमारे गुनाहों की वजह से हम खुदा को देख नहीं सकते हैं। That's why the King David
King David writing in his psalm, इसीलिए मज़ामिर नवीस दावीद कलाम में मजमूर में लिखता है, Lord, do not take away your presence from me. वो कहता है, ए खुदा आपकी मौजूदगी में मुझसे मत दूर करना। One more thing when we come to worship, और एक बात यह है कि जब हम इबादत के वास्ते आते हैं, before God can accept your worship, खुदा हमारी इबादत को मकबूल ठहराने से पहले He has to accept you as a person. आपको पहले आपकी जात को लेकर आपको पहले खुदा के सामने मकबूल होना है। To God, the offerer becomes more important than the sacrifice. खुदा के सामने जो कुर्बानी देता है, कुर्बानी से ज्यादा कुर्बानी करने वाला अहमियत रखता है। My dear friend, this is not my conclusion. अजीजों, ये मेरा कहना नहीं। In Genesis 4 and 4, पैदाइश की किताब बाब नंबर 4 और आयत नंबर 4 में if you read this verse, वहां पे अगर आप वो आयत पढ़ेंगे, the Lord had regard for Abel, number 1, and his offering. वहां पे लिखा हुआ है, और यहोवा ने हेबेल को और उसके हदिये को मंजूर किया। So we have come here to worship Him. हम तो यहाँ पे खुदा की इबादत करने के वास्ते आए हैं। First of all, God has to accept us. पहले खुदा को हमारी निस्बत, मतलब हमें देखकर हमें मकबूल ठहराना है। If our life is right before Lord, अगर हमारी जिंदगी खुदा के सामने ठीक है, we are acceptable, हम मकबूल ठहरेंगे, then He accepts our worship. और उसके बाद ही हमारी इबादत को, हमारी कुर्बानी को भी वो मंजूर ठहराएगा। That's what King David says. बादशाह दावीद ने ऐसा ही कुछ किया था। Lord, if you delight in sacrifices, I would have given it. वो कहता है, ए खुदावंद, ए होवा, अगर आप कुर्बानियों में दिलचस्पी रखते हैं तो मैं ढेर सारी कुर्बानियां चढ़ा दूंगा। If you take pleasure in burnt offerings, I would have given it. अगर सोख्तनी कुर्बानियों में आपकी दिलचस्पी है तो मैं ढेर सारे चढ़ा दूंगा। But that's not what you desire. लेकिन वो नहीं है जिस पर आप दिल रखते हैं। You desire the sacrifices of a broken spirit. आप चाहते हैं कि एक उस तरह का एक रूह जो बहुत टूटी है, A broken and a contrite heart. टूटा हुआ दिल आप पसंद करते हैं। My dear friends, अजीजों, God desires truth in the innermost being. हमारे अंदर खुदा सच्चाई चाहता है। In this 1 Samuel 15:11, we see two things. यहाँ पे पहला समूएल की किताब 15 की 11 में हम दो बातें देखते हैं। God's regret and Samuel's prayer. खुदा अफसोस जताता है, लेकिन समूएल फिर से दुआ मांगता है। From this one verse, इस एक आयत से we can safely conclude, हम आसानी से ये बोल सकते हैं, God rejected Saul, God rejected his worship. साउल को खुदा ने टुकराया और उसकी इबादत या उसकी कुर्बानियों को भी उसने टुकरा दिया। But why did the Holy Spirit put this verse, Saul worship the Lord? लेकिन यहाँ पे रूहुल कुद्स ये जुमला, ये फ्रेज क्यों रखा कि साउल ने यहोवा की इबादत करते हुए सिजदा किया? Only to impart lessons of worship to us. ताकि हमें सबक सिखाएं। So number one thing we need to know, तो पहली बात जिसे हमें सीखनी है वो ये है, any worship with a strained relationship with God, doesn't find acceptance from God. एक इबादत जिसे हम पेश करते हैं, बल्कि खुदा से अगर हमारा रिश्ता तोड़ने के बाद पेश करते हैं तो वो इबादत मकबूल नहीं ठहरती। What is the second thing we learn? दूसरी बात हम यहाँ पे ये देखते हैं, Read the verse 12. यहाँ पे आयत नंबर 12 पढ़ेंगे। Yes, brother. समूएल सवेरे उठा कि सुबह को साउल से मुलाकात करे, और समूएल को खबर मिली साउल कर्मेल को आया था, और उसने अपने लिए यादगार खड़ी की और फिर कर गुजरता हुआ गिलगाल को चला गया है। Underline the words, उसके लिए यादगार खड़ी की। हाँ, यहाँ पे लिखा है, Set up a monument for himself. उसने अपने लिए यादगार खड़ी की। He set up a monument for himself so that people can praise him. उसने अपने लिए एक यादगार खड़ी की ताकि लोग उसे देखें और उसकी हम्द करें। Glorify himself. अपने आप को वो बहुत बड़ा बनाता है। In worship, God deserves all the glory. इबादत में खुदा ही पूरी इबादत मांगता है। Psalm 50 and verse 23 says, यहाँ पे हम पढ़ते हैं मज़ामिर की किताब चैप्टर 50, Whosoever worships me glorifies me. 50 की 23, वहां पे लिखा हुआ है, जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी तमजीद करता है।
So Saul set up a monument. तो यहाँ पे साउल ने क्या किया था, उसने एक यादगार बनाई. So when we come to worship, जब हम भी इबादत के वास्ते आते हैं, what's the thing that we should do? हमें क्या करना चाहिए? Before we enter the main door, हाँ, मेन डोर से आगे बढ़ने से पहले leave your pride, अपना घमंड जो है वो बाहर रखें, leave your achievements, और आपकी कामयाबियां जो हैं वो बाहर रखें, leave your successes, अपनी जो भी अहलियत है वो पूरा बाहर रखें, put on the garments of humility, अपने आप को बहुत हलीम बनाएं, and practice these words. और ये बातें जो हैं इनको प्रैक्टिस करें. By the grace of God, I am what I am. खुदा की रहमत से, उसके फजल से जो मैं हूं सो हूं. I am what I am by the grace of God. That's what Paul says. जो मैं हूं सो हूं खुदा के फजल से हूं करके पौलुस रसूल ने भी कहा था. Our pride makes our worship unacceptable. हमारा घमंड जो है, फख्र जो है, हमारी इबादत को खुदा के सामने नामकबूल ठहराता है. So when we come here तो जब हम यहाँ आते हैं to worship Him, उसकी इबादत करने के वास्ते, we want to value God and devalue us. हम अपने आप को कमतर बनाकर खुदा की तमजीद गाते हुए हमें आना है. What are the intentions that we have come to the worship? आज खुदा की इबादत करने के लिए किस मकसद से हम आए हैं? We have not come to promote ourselves. हम यहाँ पे अपने आप के बारे में दोहरा कर बताने के लिए तो नहीं आए हैं ना. We have come here to exalt God. हमारे खुदा की तमजीद बढ़ाने के लिए हम यहाँ आए हैं. It's essential to maintain humility when we have come to worship. खुदा की इबादत करने के लिए जब आते हैं तो जरूर और यकीनन हमें खाकसार बनना है. So we have learned two things. तो यहाँ पे हमने दो बातें सीखी. Our wrong choices can snap the relationship with God, and this strained relationship will makes us worship unacceptable. गलत चुनाव या इख्तियार जो हम करते हैं वो खुदा से हमारी रिश्ते को तोड़ देते हैं, और टूटा हुआ रिश्ता लेकर अगर हम इबादत करेंगे तो वो इबादत भी नामकबूल ठहरेगी. Secondly, दूसरी बात, pride in us makes our worship unacceptable. हमारे अंदर जो घमंड होता है वो भी हमारी इबादत को नामकबूल ठहराता है. What's the third thing? तीसरी बात क्या है? Verse 13. आयत नंबर 13. Blessed are you of the Lord. I have carried out the command of the Lord. तो खुदावंद यहोवा की तरफ से मुबारक हुआ, मैंने यहोवा के हुक्म पर अमल किया. हुक्म पर अमल किया. उसने कहा मैंने हुक्म पर अमल किया. These are the words of Saul to prophet. ये साऊल ने समूएल नबी के सामने कहा था. There's a face-to-face meeting, Saul and Samuel. यहाँ पे सामुएल और साऊल दोनों रूबरू हैं. Before the prophet can talk a single word, नबी एक लफ्ज बोलने से पहले Saul says, साऊल कहता है I have carried out the command of the Lord. मैंने यहोवा के हुक्म पर अमल किया. In fact, हकीकत में he has disobeyed the command of the Lord. उसने यहोवा के हुक्म की नाफरमानी की थी. He is telling a blatant lie. उसने एक बहुत बड़ा झूठ बोला. There's a huge gap between his walk and the talk. उसकी चाल चलन और उसकी बोली के दरमियान बहुत ज्यादा फासला है. A blatant lie was spontaneous from Saul. उसकी जुबान पर एक तैयार झूठ तैयार था. Dear friend, the third thing is, अजीजों, तीसरी बात यह है, with a lying tongue we cannot worship him. एक झूठी जुबान से हम खुदा की इबादत नहीं कर सकते We हैं. Christians, believers are habituated to a Christian vocabulary. हम यीशुई लोग जो होते हैं, हम क्रिश्चियन वोकैबुलरी आसानी से इस्तेमाल करते हैं. Some things are come very spontaneously to us. हमारे अंदर से कुछ बातें, कुछ चीजें आसानी से निकलकर बाहर आती हैं. Praise the Lord. प्रेज़ द लॉर्ड बोल देते हैं. By God's grace, I have achieved this. खुदा की रहमत से मैंने ये हासिल किया बोल देते हैं. Our vocabulary is 10%, 100% correct. हमारी वोकैबुलरी या बोली जो है, अल्फाज जो हैं, वो सब के सब बहुत अच्छे रहते हैं. But there is rottenness inside. लेकिन हमारे अंदर सड़न रह सकती है. This is called hypocrisy. इसी बात को, इसी चीज को रियाकारी बोला जाता है. Instead of letting out the fragrance, हमारे अंदर से खुशबू को बाहर निकालने के अलावा we only give out the rottenness. हम सिर्फ और सिर्फ गंदगी या सड़न को ही बाहर आने देते हैं. Best illustrated in John chapter 12, the Mary's worship. मरियम की इबादत जो है यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 12 में, उसमें हम बहुत अच्छे तरीके से इबादत के बारे में देखते हैं. There was one person, other person also in that room. एक इंसान है उस कमरे में.
Judas Iscariot, who was rotten in the inside. वो इंसान था यूदा इस्करियोत जिसके अंदर ये सड़न या गंदगी है। Mary's worship can be described in 3 verbs. वहां पे ये मरियम ने जो इबादत की थी उस इबादत को 3 अल्फाजों में हम बयान कर सकते हैं। Took, लेना, anointed, और मसा करना, wiped. और साफ करना। If you read that John chapter 12, अगर आप यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 12 को पढ़ेंगे, there is not a single word uttered by Mary. वहां पे मरियम ने एक लफ्ज भी उसने नहीं कही थी। What is that she took? उसने क्या लिया था? An ointment, precious ointment. उसने एक बहुत कीमती इत्र को लिया था। Lot of preparation goes into the preparation of that perfume. और उस इत्र की तैयारी में बहुत काम किए जाते हैं। A lot of saving must have gone in Mary's life to purchase that perfume. इत्र को खरीदने के वास्ते मरियम को बहुत कुछ काम करके बहुत कुछ पैसे इकट्ठे करने थे। And only to spend it at the Lord's feet. क्यों? सब कुछ करके उसने क्या किया था? इतना खर्चा उठाकर इतनी अनमोल चीज को लाकर खुदावंद यीशु के पैरों पर रख दी। When we come here to worship, जब हम खुदावंद यीशु की इबादत करने के लिए there's आते only हैं, the perfume that we must be prepared to offer to the Lord. सिर्फ और सिर्फ इत्र को ही लाकर खुदावंद के लिए पेश करना है। The fragrance comes only when it is grounded and pounded. जब भी इबादत कब बाहर निकलती है हमारे अंदर से, जब हम कुचले जाते हैं और निचोड़े जाते हैं, तब अच्छी इबादत निकलती है। If you want to prepare rasam, अगर आप रसम बनाना चाहते हैं घर में, what do we do? क्या करते हैं? Take out pepper, पेपर लेते हैं take out the जीलकर्रा, और जीरा लेते हैं and pound it and grind it. और उसे अच्छे से हम कूटते हैं। That's only the time that the good rasam comes. उसके बाद ही उसमें से वो खुशबू निकलकर अच्छा रसम बनता है। So that is the perfume that God desires. इस तरह की खुशबू खुदा चाहता है। So my dear friends, when we come to worship, we should examine whether there is rottenness or perfume. अजीजों, इसी तरीके से खुदा देखता है कि हम जब खुदा के पास आते हैं तो हमारे अंदर सड़न है या खुशबू। So Mary took that ointment. तो मरियम ने क्या किया था? वो इत्र लेकर आई थी। Second verb is anointed. और वहां पे दूसरा लफ्ज जो है वो है मसह करना। Her object of worship was very, very clear. जिसकी इबादत करने के लिए वो आ रही थी उसके बारे में वो पूरी जानकारी रखती थी। I'm going to anoint my Savior. उसने कहा था कि मैं मेरे नजात दहिंदा की इबादत करने जा रही हूँ। Who alone is worthy to be worshipped, worthy to be honored. और वो इबादत का लायक है, वो ही इबादत का लायक है। Who is the object of our worship? हमारी इबादत का ऑब्जेक्ट कौन है? We should question ourselves. हम अपने आप को सवाल करेंगे। The third verb, wiped his feet. वहां पे तीसरा फेल या लफ्ज जो है वो है वो साफ करना, पोंछना। And he wiped the feet of our Lord. और वो हमारे खुदावंद यीशुआ के पैरों को पोंछी थी। That shows the attitude of worship. वो है इबादत का एटीट्यूड। Humility and humility. खाकसारी, हलीम बनना, खाकसार रहना। Her love towards Christ was so intense that she could not utter a word. उसकी इबादत खुदावंद यीशुआ पर इतनी बड़ी थी कि वो एक लफ्ज भी नहीं निकाली। Not a single word came from Mary's heart. मरियम के दिल से, मरियम के अंदर से एक भी लफ्ज नहीं निकल कर आया था। Her worship was only actions. उसकी इबादत सिर्फ और सिर्फ आमाल में थी। Remember when we come here to worship, अजीजों, जब हम भी यहाँ इबादत के वास्ते आते हैं, God is reading our minds. हमारे खुदा हमारे दिलों को पढ़ रहा है। God is searching our hearts. हमारे दिलों को खुदा ढूंढ कर पढ़ रहा है। With what attitude have we come? किस रवैये से हम यहाँ आए हैं? With a lying tongue we cannot worship. झूठी जुबान से हम उसकी इबादत नहीं कर सकते हैं। So these are the few things we have to remember when we come to worship. ये चंद बातें हैं जिन्हें हमें याद करना है जब हम उसके पास इबादत के वास्ते आते हैं। Now one man said, यहाँ पे आज हम देखेंगे कि एक इंसान ने कहा था, the tongue is the smallest organ in the body, हमारे जिस्म में जुबान जो है वो बहुत एक छोटा सा ऑर्गन है, but it's the greatest troublemaker. लेकिन वो बहुत बड़ा ट्रबल मेकर है। Yeah, smallest organ, greatest troublemaker. वो बहुत छोटा सा अज़ा उज़्व है, लेकिन वो बहुत बड़ा तकलीफ पैदा कर देता है। I did not explain further because if you read James
3rd chapter, verses 8 to 11, we know everything. हम ज्यादा इसके बारे में पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि हमें पता है कि याकूब की किताब 3:11 में ये बातें लिखी गई हैं। The world's smallest, yet the greatest troublemaker. दुनिया की छोटा सा उज़्व है, लेकिन बहुत बड़ा ट्रबल मेकर है। With our tongue, we can praise God. हमारी जुबान से हम खुदा की तमजीद कर सकते We हैं, can pray, we can preach, हम इबादत कर सकते हैं और दुआ मांग सकते we हैं, can share our testimony, हमारी गवाही बोल सकते हैं, reach out to the lost. और जो लोग लॉस्ट हैं उनको भी खुशखबरी सुना सकते हैं। But at times, this same tongue lies. लेकिन कभी कभार यही छोटी जुबान झूठ बोलती है। It ruins our reputation. हमारी भलाई को या हमारी अच्छी रेपुटेशन को वो खराब कर देती है। It breaks the person to whom we are talking, breaks the heart of the person to whom we are talking. जिससे हम मुखातिब होकर बातें करते हैं, उनके दिल को भी वो तोड़ देती है। What does lying do to us? झूठ हमें क्या करता है झूठ? Immediately we start to blame others. हम यकायक दूसरों पर इल्जाम लगाने लगते हैं। Read verse 10 and verse 9. आयत नंबर 9 पढ़ेंगे। Saul and his people spared Agag and the best of the sheep, the oxen, fatlings, lambs, and all that was good. Not were willing to destroy them utterly, but everything despised and worthless. लेकिन साउल ने और उन लोगों ने अजाज को और अच्छी अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों और मोटे मोटे बच्चों और बर्रों को और जो कुछ अच्छा था उसे जीता रखा और उनको नेस्त करना ना चाहा। Who spared the cattle and the king? यहाँ पे भेड़ बकरियों को और बादशाह को किसने बख्श दिया? Saul and the people. साउल और उसके लोगों ने। But what does verse 15 say? लेकिन 15वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? Then Saul said, they have brought them from the Amalekites, for the people spared the best. साउल ने कहा, ये लोग उनको अमालेकियों के हाथ से ले आए हैं। I did not do it. मैंने ऐसा नहीं किया था, It is the people who have done this. लोगों ने ऐसा किया था। Yes, what a blatant lie. He started blaming the people. कितना झूठ है ना कि लोगों पर वो इल्जाम लगा रहा है। And now he has come to offer sacrifices. और वो अब आकर ये कुर्बानियां चढ़ा रहा है। And God says, I have rejected him and rejected his worship. और खुदा ने कहा कि मैं उसे तर्क करता हूँ और उसकी इबादत को मैं तर्क करता हूँ। My dear friends, when we come to worship, अजीजों, जब हम खुदा की इबादत करने के लिए आते हैं, remember these 3 things. ये 3 बातें हम याद रखेंगे। Our wrong choices हमारे taps the relationship with God. हमारे रॉन्ग चॉइसेस जो होते हैं, खुदा से हमारा रिश्ता जो होता है उसे तोड़ देते हैं। And with this strained relationship, we cannot offer a worthwhile worship. और इस तरह के खुदा से रिश्ता तोड़ने के बाद खुदा के पास हम इबादत नहीं कर सकते। And secondly, और दूसरी बात, the pride in us makes our worship unacceptable. हमारे अंदर जो मगरूरी जो होती है, वो मगरूरी या घमंड हमारी इबादत को नामकबूल ठहराती है। And thirdly, और तीसरी बात, with a lying tongue, we cannot worship. झूठी जुबान से हम खुदा की इबादत नहीं कर सकते हैं। So it's very, very crystal clear. तो यहाँ पे बहुत साफ साफ जाहिर होता है, Saul offered his worship to the Lord, साउल ने इबादत की थी, खुदा की इबादत की थी, but it's well concluded that he and his worship was not accepted. लेकिन यहाँ पे साफ साफ वाज़े तरीके से पता चलता है कि उसको और उसकी इबादत को खुदा ने नामकबूल ठहराया। We can also come, sit down and say so many words, thanking the Lord, worshiping the Lord. हम भी यहाँ आ सकते हैं, बहुत सारी बातें कह सकते हैं, खुदा की हम्द व सना तमजीद और इबादत कर सकते हैं, But is it worthwhile? लेकिन क्या ये कबूल होते हैं? Have you found yourself as an accepted person before the Lord? क्या आप अपने आप को खुदा के सामने एक मकबूल इंसान ठहराया? And if you worship, that also will be accepted. अगर आप सही तरीके से इबादत करते हैं तो आपकी इबादत भी मकबूल ठहरेगी। And God had what you call this, Genesis 4 and 4, and when it close. हम पढ़ेंगे पैदाइश की किताब बाब नंबर 4 और आयत Had regard for Abel and his sacrifice. हाँ, वहां पे लिखा हुआ है, खुदा ने हेबेल और उसके हदिये को मंजूर किया।